Good morning, students. Welcome to Har Ghar Pathshala. Myself, Sangeeta Sharma, lecturer chemistry, Government Model Senior Secondary School, Rajpur. आज हम start करेंगे organic chemistry with the first unit of organic chemistry. Otherwise, it is your 10th unit. Haloalkanes and haloarenes. So, let us understand what haloalkanes are basically. This is methane, 1 carbon and 4 hydrogen atoms. If we replace one of its hydrogen atoms by some halogen X, X can be Cl, Br, fluorine or even iodine, then it becomes haloalkane like Rx. Rx means R is alkyl group and X is halogen attached to it. And alkanes have the formula CnH2n plus 2, that is hydrogen atoms are 2 more than the double of carbon atoms. But in haloalkanes or alkyl halides, the formula becomes CnH2n plus 1x, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया एल्केन की अपेक्षा और उसकी जगह क्या रख दिया, एक हेलोजन एटम रख दिया. सो दिस इज हेलोएल्केन. कॉमनली उनको एल्काइल हैलाइड कहते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. एग्जाम्पल्स हो गए जैसे ब्रोमो मीथेन, कॉमन नेम इसका मिथाइल ब्रोमाइड होता है, क्लोरो इथेन, इथाइल क्लोराइड. और हमारी डेली लाइफ में जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हेलोजन्स जो हैं, दे आर ऑफ वेरी वाइटल इम्पोर्टेंस. Some of them are used very good solvent for some non-polar compounds. And chloramphenicol, this compound is prepared by a microorganism in soil, and this is used for treatment of typhoid fever. Thyroxine is iodine containing hormone secreted in a gland of our body, which whose deficiency can lead to goiter, गिलहट जिसे कहते हैं. Chloroquine is also chlorine containing organic compound. It is used for treatment of malaria. So these halogen containing organic compounds are very essential in our daily life also. Now we come to haloarenes. What are haloarenes? You are very well versed with this compound, which is called benzene. Benzene C6H6 is its formula. And अगर हम बेंजीन को पिक्चराइज करना चाहें ब्रेन में, तो हम क्या देखते हैं कि 6 कार्बन्स का एक रिंग है. Every carbon is doubly bonded with other carbon and one single bond is also there. और हर कार्बन के पास इसके सिवाय एक हाइड्रोजन होता है. अब हम यदि बेंजीन के किसी कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करने, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम हेलोएरीन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. Examples are chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene and many other examples which we shall be discussing later on. हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में एक मेजर स्ट्राइकिंग डिफरेंस, जो इनकी आगे फर्दर चल के आप देखेंगे कि प्रॉपर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ का भी एक कारण बनता है, तो वो है कि हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या मतलब कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड होता है हेलोएल्केन्स में, that is sp3 hybridized. sp3 hybridized means this carbon is having purely 4 sigma bonds, no pi bond is there and other things also. But in haloarenes, the carbon atom to which the halogen group is attached is basically sp2 hybridized. It is quite clear that it is having 1 pi bond and 3 sigma bonds, so it is sp2 hybridized. And this difference, sp3 hybridized carbon in haloalkanes and sp2 hybridized carbon in haloarenes, makes a substantial difference in the properties of haloalkanes and haloarenes, which we shall discuss shortly. Come to classification of haloalkanes and haloarenes. First ground of
classification of haloalkanes and haloarenes is on the basis of number of halogen atoms. If we see the number of halogen atoms in a compound and if its number is 1, जैसे यहाँ पे क्लोरोमीथेन में just एक halogen atom attached है compound में, ब्रोमोबेंजीन में it has just 1 halogen atom, तो इनको हम कह देते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स. मोनो मीन्स 1, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स. लेकिन इसी में दूसरी टाइप आ जाएगी जिनमें दो हेलोजन्स अटैच्ड हैं. जैसे यहाँ देखें 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं इस कंपाउंड के साथ, इथेन 1,2-डाइक्लोरो इथेन के साथ, या इस बेंजीन के साथ भी 2 ब्रोमो लगे हुए हैं. सो इट इज़ डाई हेलोजन डेरिवेटिव. और इसमें देखें तो यहाँ पे इस कंपाउंड में 1, 2, 3 हेलोजेंस लगे हुए हैं. 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन है ये, तो इट इज़ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव. सिमिलरली इस बेंजीन के साथ 1, 3, 5 पोजिशन पे 3 हेलोजेंस लगे हुए हैं. ट्राइक्लोरो बेंजीन है ये, 1, 3, 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन. सो इट इज़ अगेन ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव. सेकेंड बेस या ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज the compounds having halogen attached to the carbon atom which is sp2 hybridized. इस कैटेगरी में आते हैं विनाइलिक और एराइलिक हेलाइड्स या एराइल हेलाइड्स. विनाइलिक हेलाइड्स में क्या होता है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका एक डबल बॉन्ड है, एंड ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी. और जब हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच्ड है जिसका डबल बॉन्ड है, देन इट इज अ केस ऑफ विनाइलिक हेलाइड. सिमिलरली साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जिस कार्बन का डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड भी है. अगेन दिस विल बी कॉल्ड विनाइलिक हेलाइड. देन इज एराइल हेलाइड. जब हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो कि एक एरोमेटिक रिंग को बिलोंग करता है, ये कार्बन जो है बेंजीन रिंग का हिस्सा है, बेंजीन के बेसिक न्यूक्लियस का हिस्सा है. तो जब ऐसे कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच्ड होगा देन दिस विल बी एन एराइल हेलाइड. जैसे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन कहाँ बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे आयोडीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है. सो दिस इज अ केस ऑफ एराइल. The third base of classifying them is the compounds containing sp3 hybridized carbon atom attached to halogen atom or they are having such bond of carbon and halogen. So इसमें भी basically पहली कैटेगरी आएगी alkyl halides. पहली क्लास आएगी alkyl halides. Alkyl halides are X. इसमें जो कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच्ड है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. लेकिन एल्काइल हेलाइड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी एल्काइल हेलाइड उसे कहेंगे जिसमें हेलोजन ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो डायरेक्टली केवल एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है. जैसे ये कार्बन है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू जस्ट दिस कार्बन एटम. ये कार्बन एटम है, ये 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये बेसिकली सेकेंडरी कार्बन एटम है. और ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, अगेन इट इज प्राइमरी कार्बन एटम. तो जब प्राइमरी कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच्ड होगा देन सच एल्काइल हेलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी एल्काइल हेलाइड. इसे देखें, इसमें हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, यानी कि ये खुद ही सेकेंडरी कार्बन है. जब सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ हेलोजन अटैच्ड होगा देन द हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड विल बी कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड. इसमें ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये खुद क्या है, टर्शरी. इट इज टर्शरी कार्बन. तो टर्शरी कार्बन के साथ जब हेलोजन एटम अटैच्ड होगा द एल्काइल हेलाइड विल बी कॉल्ड टर्शरी एल्काइल हेलाइड. सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है या सेकेंड टाइप इसमें आती है एलिलिक हेलाइड. अब विनाइल हेलाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन होती थी उसके साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड होता था. एलिलिक हेलाइड में उससे एक स्टेप आगे जाना है. ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे अगला कार्बन जो है जिसका अपना क्या है सिंगल बॉन्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ जब हेलोजन अटैच्ड होगा
such alkyl halide is called allylic halide. साइक्लोहेक्सीन में देखें, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन एटम है, इससे नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ जब हेलोजन अटैच्ड होगा देन अगेन इट विल बी ए केस ऑफ एलिलिक हैलाइड. नेक्स्ट इज बेंजिलिक हैलाइड्स. बेंजिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जब हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, बेंजीन रिंग के साथ एक साइड में कार्बन एटम अटैच्ड होगा, उसके साथ जब हेलोजन अटैच्ड होगा. अब ऐसे केस में ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग. ये बेंजीन रिंग से बाहर है, उसकी साइड चेन की तरह है और इसके सारे बॉन्ड सिग्मा है. इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. बेंजिलिक हैलाइड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. हाउ? This is primary benzylic halide. Why? Because the carbon atom to which the halogen is attached is directly bonded to just one carbon atom and it is primary carbon atom. Here, this carbon atom is directly bonded to two carbon atoms. So this is secondary carbon atom and the benzylic halide will also be called secondary benzylic halide. This carbon atom is attached to one this and two these carbon atoms. तो ये तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है वो कार्बन एटम जिसके साथ क्या है? हेलोजन अटैच्ड है. सो दिस इज टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड एंड नाउ वी विल डू नॉमेनक्लेचर. व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर होता है किसी चीज का नाम रखने का प्रोसेस, प्रक्रिया पूरी. तो नॉमेनक्लेचर IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक तो IUPAC नेम्स होते हैं और दूसरे कॉमन नेम्स होते हैं. कॉमन नेम्स तो जैसे प्रेवलेंट हैं वैसे ही चलेंगे, लेकिन IUPAC नेम जब भी हम करते हैं उसकी बैकबोन होती है वर्ड रूट. वर्ड रूट मीन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन चेन. जैसे यहाँ पे एक है, दो, यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स हैं चेन में, तो तीन के लिए एक कार्बन एटम के लिए मिथ, दो के लिए इथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे. वर्ड रूट के इमीडिएटली बाद प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि कार्बन के सारे बॉन्ड आपस में सिंगल हैं या कोई डबल है या कोई ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है. और प्राइमरी सफिक्स के बाद भी समटाइम्स हमें सफिक्स ऐड करना पड़ता है जब कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से जो आप जानते हैं वो मौजूद हो. और कुछ केसेस में जैसे हेलोजेंस जो हैं उनके केसेस में प्रीफिक्स लगता है. मतलब कार्बन एटम की चेन की लेंथ बताने से भी पहले अगर कोई चीज़ इंडिकेट कर दी जाएगी, दैट विल बी प्रेजेंस ऑफ ए हेलोजन. तो देखें ये है, इसमें एक प्रीफिक्स की जगह क्लोरो और एक कार्बन है, इसलिए मिथ एन. आप ऐसे अलग करके नहीं लिखेंगे, आप इसको वन वर्ड की तरह लिख देंगे. ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि मिथ इज वर्ड रूट, एन इज प्राइमरी सफिक्स एंड क्लोरो इज प्रीफिक्स. नो नेम इज पॉसिबल विदाउट वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स. हो सकता है फंक्शन ग्रुप हो या ना भी हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करनी बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप भी है, उसका भी नाम लेंगे. यहाँ पे देखें ब्रोमीन इस कार्बन से लगा है और नंबरिंग करते वक्त स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है उस कार्बन को जिसके साथ फंक्शन ग्रुप हो. दो कार्बन हैं, अब इसको बोल देंगे 1 ब्रोमो. फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है 1 ब्रोमो और कितने कार्बन हैं? 2 और एन, 1 ब्रोमो इथेन. इकट्ठा कर दें फिर इसको, ब्रोमो थोड़ा इस तरह से. अच्छा, इसमें देखें फ्लोरीन इस कार्बन से लगा है 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं. फ्लोरीन की पोजीशन 1 है तो 1 फ्लोरो. हाउ मेनी कार्बन्स? 3 कार्बन्स. और सारे बॉन्ड कैसे हैं कार्बन्स के? सिंगल, इसलिए क्या लिख रहे हैं हम? एन. इसे देखें, दिस इज अगेन प्रोपेन, लेकिन हम इसको 1 नंबर नहीं दे सकते क्योंकि ये टर्मिनल नहीं है. नंबरिंग तो हमें टर्मिनल से ही, किनारे से ही स्टार्ट करनी है. 1 2 3. अगेन दिस इज प्रोप प्लस एन, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे क्या है? 2 ब्रोमो. सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है तो कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो प्रोप एन. हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, कॉमन नेम्स जो कुछ एक कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स तो आप रूल्स के हिसाब से बना भी सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम्स कुछ एक इतने प्रेवलेंट हैं कि वो आपको पता होने चाहिए और हमेशा दिमाग में होने चाहिए. जैसे क्लोरोमीथेन का कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड.
ब्रोमो इथेन, क्लोरोइथेन होगा, चाहे आयोडोइथेन होगा। आप इस तरह से, जैसे यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, अगर क्लोराइड लगा होगा तो यहाँ पे क्लोराइड कर देना है, आयोडाइड होगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड कर देना है, बेसिक नेम इथाइल और समथिंग जो भी होगा उसको अटैच करें। देखें 1 फ्लोरोप्रोपेन का कॉमन नेम मैंने लिखा है एन प्रोपाइल फ्लोराइड। अब एन कब यूज होता है? एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, जब भी, और ये कॉमन नेमिंग का ट्रेंड है, IUPAC में कभी भी एन यूज नहीं होता। एन वर्ड कब यूज होगा? जब जो कार्बन की चेन है दैट इज स्ट्रेट चेन, इट हैज नो ब्रांचिंग, देन इट इज एन। देन इसको, ये जो था 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें देखें जो इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नाउ व्हाई दिस आइसो इज यूज्ड? आइसो तब यूज करते हैं जब जो कार्बन की चेन है उसकी सेकंड लास्ट कार्बन किसी भी टर्मिनल से, सेकंड लास्ट, चाहे इधर से चाहे उधर से, अगर उसके साथ 2 CH3 आपको अटैच दिख जाएं इस तरह से, जैसे यहाँ पे 2 CH3 सेकंड लास्ट कार्बन के साथ हैं, तब इसको कॉमन नेमिंग में आइसो नाम दिया जा सकता है। तो इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहेंगे। अब इसे देखें, दिस इज 1 2 3 4 5, IUPAC नेम तो हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, सिंपल है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन पेंटाइल ब्रोमाइड। वाई एन? क्योंकि चेन बिल्कुल सीधी है। अब पेंटाइल के ही कुछ और वर्जन्स देखते हैं कॉमन नेम की नेमिंग के हिसाब से। IUPAC नेम करना होगा इस कंपाउंड का, तो देखें 1 2 3 4, 3 मिथाइल एंड ब्रोमो, 1 ब्रोमो भी कर सकते थे, ब्रोमो ब्यूटेन कहेंगे इसको IUPAC नेम। लेकिन कॉमन नेमिंग के हिसाब से मैंने कहा था कि सेकंड लास्ट कार्बन फ्रॉम एनी टर्मिनल, तो इस तरफ तो इस तरफ से सेकंड लास्ट ये है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरफ से सेकंड लास्ट कार्बन ये है, और इसके साथ मुझे साफ साफ 2 फ्री CH3 दिख रहे हैं, 1 CH3 अदर CH3। अब इसको हम आइसो बोल सकते हैं। और कॉमन नेमिंग का उसूल है कि उसमें केवल स्ट्रेट चेन के कार्बन्स नहीं काउंट होते, सारे काउंट होते हैं। तो इसका नाम होगा आइसो 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। सो आपको ये आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्शरी का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने ये किया था अभी आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, उसके IUPAC नेम में एक थोड़ी सी गड़बड़ हमने की है। वो ये है कि हमने ब्रोमो आगे लिखा है, तो मतलब पीछे लिखा है, मिथाइल आगे लिखा है, ऐसा नहीं होगा। अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है तो ब्रोमो पहले लिखना था, हमने लिख दिया था 3 मिथाइल 1 ब्रोमो बाद में लिखा, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो शुड हैव कम फर्स्ट, उसको रेक्टिफाई कर लें प्लीज़। तो ये आइसो था क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या था, 2 CH3 थे, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसे देखें 1 2 3 4, इसका IUPAC नेम तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, बट कॉमन नेम जो होगा दैट विल बी टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी इस तरह से, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, बिकॉज ब्रोमीन इज अटैच टू द कार्बन एटम दैट इज टर्शरी इन नेचर। और टोटल कितने 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हैं। कॉमन नेमिंग में सारे के सारे कार्बन एटम्स काउंट किए जाते हैं। इसे देखें 1 2 3। अब इसका IUPAC नेम के हिसाब से तो 2 तो साइड चेन्स आ गई इसमें, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन कॉमन नेम के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेकंड लास्ट कार्बन फ्रॉम एनी टर्मिनल,
तो इस टर्मिनल से भी फिलहाल तो ये इससे भी सेकेंड लास्ट है। जब ऐसे कार्बन के पास 3 फ्री CH3 ग्रुप हों, 2 होते थे तब हम आइसो वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे कितने हैं, 3 CH3 हैं सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ अटैच्ड, तो ऐसे में हम नियो वर्ड यूज करते हैं। नियो, दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। So this is the difference between iso, tertiary, neo and normal. Then we take examples of some haloarenes. This is chlorobenzene, bromobenzene. This is, or a common name of this compound is orthodichlorobenzene. Ortho जब adjacent position पे 1-2 position पे हो, IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा हम तब कहेंगे 1, 2, 3, 4, 1-4 पोजिशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं देन इट इज पैरा। IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज कॉमन नेम। अगर यही क्लोरीन यहाँ पे होती 1-3 पोजिशन पे होती देन वी वुड हैव कॉल्ड इट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड IUPAC नेम वुड हैव बीन 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। इसको 1, 2, 3 1-bromo-3-क्लोरोबेंजीन कह देंगे। इसे देखें, इसमें क्लोरीन भी है और एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है बेंजीन के साथ। तो ये ऐसे केस में जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। सो वी शेल नेम इट लाइक 2-मिथाइल 1-क्लोरोबेंजीन। 2-मिथाइल 1-क्लोरो या सिंपली क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, बट कॉमन नेम इसका होगा ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन। तब हम इसको बेस कंपाउंड मान के चलेंगे और उसकी टोल्वीन की ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरीन है, इसलिए हम ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 bromines are symmetrically placed in whole of the benzene. Then common name इसका होता है symmetrical tribromobenzene, but IUPAC name होगा 1,3,5 tribromobenzene. Then comes this compound. बेंजीन के ऊपर यदि CH3 हो then it is toluene. इसका एक H रिमूव करवा दें और उसकी जगह हेलोजन लगा दें तो ये कंपाउंड बनता है। अब इसमें क्लोरीन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। जब बेंजीन के ऊपर CH2 रह जाता है बेंजीन के साथ अटैच्ड और CH2 के साथ फिर फर्दर कुछ एक बॉन्ड तो कार्बन का बनाना ही है, कुछ और लगेगा, तो इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल कॉमन नेम में, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम। बट जब IUPAC नेम करेंगे तो तब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, भले एक कार्बन है तो दिस विल बी ट्रीटेड एज मेन चेन। अब इसको कैसे ट्रीट कर, इसको मीथेन का डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। हम ये इसमें बताएंगे कि मीथेन में CH4 था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे फिनाइल इज एक्टिंग एज साइड चेन। तो अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोफिनाइल मीथेन। ऐसा मीथेन जिसका एक हाइड्रोजन क्लोरो से और एक हाइड्रोजन फिनाइल से रिप्लेस हो गया है। इसको देखें, दिस इज बेंजल। बेंजीन के ऊपर कार्बन का अगर 3 में से 2 H हटा दिए गए हैं और कितने H बचे हैं इसके साथ, सिर्फ एक H, तब इसे कहते हैं बेंजल। और कितने क्लोरीन्स लगे हैं, डाइक्लोराइड। IUPAC नेम में फिर नंबरिंग, ये मीथेन का डेरिवेटिव माना जाएगा, तो मीथेन के साथ क्या है, फिनाइल है और 2 क्लोरीन्स हैं, तो बोलेंगे डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन IUPAC नेम। इसे देखें, इसे बोलेंगे बेंजो। बेंजीन के ऊपर जब केवल C रह जाता है, उसके तीनों H रिप्लेस कर दिए जाते हैं, देन दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजो। बेंजो ट्राइक्लोराइड कॉमन नेम। IUPAC नेम फिर से क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। तब जब भी बेंजीन के साथ
कार्बन जुड़ जाए और उसके साथ फिफ्थ फंक्शन ग्रुप हो, तो वो जो कार्बन्स की चेन होगी उसको मेन चेन की तरह ट्रीट करते हुए बेंजीन को फिनाइल यानी कि साइड चेन का स्टेटस उसमें मिल जाता है। तो हमें उसी तरह से नंबरिंग और नेमिंग दोनों करनी होती हैं। नाउ वी सी द नेचर ऑफ bond between carbon and halogen in haloalkanes. So in haloalkanes or in CX bond, what we see is that halogens may be fluorine, chlorine, bromine, iodine, whatever is the halogen. It is highly electronegative element. So halogen being highly electronegative, the bond pair between carbon and halogen, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो ज़्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हैलोजन की तरफ, और फिर हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में नहीं रहा, किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, हैलोजन की तरफ। जैसे ही जितना हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो वी मस्ट understand that it is a polar bond. Polar bond means it is having positive and negative charges separated in the bond. Now when we are discussing the polarity, we expect this order ke fluorine is the most electronegative element in this group, otherwise also fluorine is highly electronegative, then chlorine, then bromine, and iodine is least electronegative in these halogens. So we expect C-F bond to be the most polar bond, but the trend of polarity is CF bond is less polar than CCl bond, which is more polar than CBr bond, again more polar than Ci bond. Now why this deviation is there? This is because जब हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं we multiply Q by D. Q is the charge got separated, जितना चार्ज इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आया, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेटेड चार्जेस। अब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी बहुत हाई है, तो Q की वैल्यू बहुत हाई रही होगी, चार्जेस काफ़ी सेपरेट हो गए, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बहुत कम रहा होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट रहा, डी की वैल्यू शॉर्ट रही CF बॉन्ड में। CCl बॉन्ड में क्लोरीन का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप खुद देख सकते हैं हैलोजन का साइज बड़ा होने के कारण डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, डी की वैल्यू बढ़ गई है। Q की वैल्यू इतनी हाई नहीं है यहाँ पे, लेकिन D की वैल्यू हाई होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट CF बॉन्ड से ज़्यादा है। एंड डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेंट इसके बाद CCl बॉन्ड के बाद डिक्रीज इसलिए करता है बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन आफ्टर क्लोरीन इज डिक्रीजिंग, साइज का कोई इशू है नहीं। सेकेंड थिंग इज बॉन्ड लेंथ। यह साफ दिख रहा है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। कार्बन का साइज तो सेम है, किसका साइज बढ़ रहा है, हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ भी आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। As we go from CF to Ci bond, the size of halogen atom is increasing, therefore bond length is also increasing. So bond length का तो ये ऑर्डर रहेगा। जब बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर होगा तो छोटा, द शॉर्टर द बॉन्ड डिफिकल्ट इज टू ब्रेक इट, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यहाँ कम और कम और कम। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल बी हाईएस्ट फॉर CF बॉन्ड, देन CCl, then CBr, then Ci, and it will decrease because when we go from CF to Ci, the size of halogen atom is increasing and the bond length is also increasing. Therefore, the bond dissociation enthalpy is also decreasing.